तो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 ऑन सर्ट्स, एक्सरसाइज 1.4 ऑन सर्ट्स का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। व्हाट वी आर गिवन हियर इज √2 is already given as 1.414 and we need to find the value of 3 root 32 minus 2 root 50 plus 4 root 128 minus 20 root 18. So you can see that 32 can be written as what? 16 into 2. 2 की पावर 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 2 की पावर 5 है ना। So you can also write it as 2 into 16. You can also write it as 2 into 16. Yes, sir. Yes. Likewise, minus 2 into under root of 50 can be written as 2 into 25, isn't it? Yes, sir. Likewise, you can write this under root as 164 as 64 into 2. And likewise, you can do minus 20 into under root of 2 into 9. तो अब अगर तुम लॉज ऑफ सर्ट्स इसमें लगा दो तो इट विल बी एक्चुअली 3 इंटू √2 इंटू √16 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √25 प्लस 4 इंटू √64 इंटू √2 minus 20 into √2 into √9. Any objection here? No, sir. √16 becomes 4. 3 into 4 √2. Likewise, √25 becomes 5. 5. So 2 into 5 √2. And √64 becomes 8. 4 into 8 √2. And √9 becomes 3. 20 into 3 √2. 20 into √9 is 3 √2. इतना समझ में आया? Yes, sir. अब ये हो गया 12 √2 minus 10 √2 plus 32 √2 minus 60 √2. तो √2 एप्पल है अगर, तो 12 एप्पल्स minus 10 apples becomes 2 apples है ना। 12 apples minus 10 apples Yes, sir. becomes 2 apples. 2 apples, so 2 apples plus 32 apples become 34 apples. 34 apples में से you subtract 60 apples, तो होगा क्या? 60 apples में से 34 apples subtract हो जाएंगे. You are left with 26 apples with a negative sign, यानी minus 26 apples यानी कि √2. या इतनी कहानी गाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सर ऐसे कर सकते हैं कि √2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 12 minus 10 plus 32 minus 60. सिंपल, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया? √2 12 plus 32 is 44 minus 70. ऐसे भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। 12 plus 32 is 44, चेक मी इफ आई एम रॉन्ग, minus 10 minus 60 is minus 70. 70 में से 44 चला गया, 26 minus 26 √2. सी इतना बड़ी कहानी को सिंप्लीफाई करके एब्जॉर्ब करके छोटा सा बना दिया। नाउ सब्स्टिट्यूट, दैट इज ये सब इक्वल टू Minus 26 into 1.414. यस, नाउ सब्स्टिट्यूट, यू ओनली आस्क ना। देखो अब ये कितना आसान हो गया, 26 into 1.414. अब इसको मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके वो कितना आ रहा है, लेट अस सी। इसको मल्टीप्लाई करो इन द मीन टाइम। माइनस कितना आ रहा है, कर पा रहे हैं? मैं कर दूं आपके लिए। 56.764. यस, इट इज कमिंग इक्वल टू माइनस 36.764. तो ये आंसर हो गया, बस यही इतना ही करना है। This is the question from exercise 1.4, question number 9, second part of Emil Agarwal. It says that find the greatest and the smallest real number among the following real numbers. Among these real numbers, you have to find the
greatest and the smallest. So some you can see this is a mixed bag. Some are irrational, some are rational, but all are real. And under root things are there. Somewhere denominator में under root है, somewhere numerator में under root है. So quite a mixed kind of a bag. So what I am trying to do here is make a bag which has a similar type of elements. मतलब कि मैं इस 3 को irrational and rational. हाँ, मैं इस 3 को रूट के अंदर ले जा सकता हूँ, मैं इस 9 को भी रूट के अंदर ले जा सकता हूँ, मैं इस 4 को भी रूट के अंदर, सबको मैं एक तरीके से छतरी के अंदर ले जा सकता हूँ, रूट के अंदर ले जा सकता हूँ. वी नो दैट 3 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 9. हियर यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन. व्हाट यू से? माइनस देखो बाहर पड़ा हुआ है, 3 को मैंने रूट 9 लिख दिया, रूट 2 तो है ही है. फिर दूसरा नंबर क्या है, इसी तरीके से 9 कैन बी रिटन एज रूट 81 ओवर रूट 5 तो ऑलरेडी है ही. देन इट बिकम्स माइनस Minus root 16. root 16. Similarly, this becomes root 16 into root 5 over root 3. And likewise, this becomes root 9 over root 4, root 3. I think everybody can now think this in this manner, how to convert a number which is rational, though this is rational only. Root 16 is rational only. ये rational ही है अभी भी, लेकिन हमने इसको इस तरीके से छतरी के अंदर लिख लिया है. क्यों? जिससे कि हम इसे कंपेयर कर सकें, जिससे कि हम इसे कंपेयर कर सकें. तो दिस बिकम्स माइनस रूट 18. सी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज अंडर रूट ए बी. लॉज ऑफ इरेशनल नंबर्स, लॉ ऑफ थर्ड्स. लाइकवाइज दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 81 over 5. Again, irrational divided by irrational, a third dividing third will be under root of third upon third. Likewise, इसको तो छूने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल तैयार बैठा है बस कंपेयर होने के लिए. इसको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है. दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 5 over 3. एंड लाइकवाइज दिस बिकम्स वॉट? अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 3 upon 4. सो सी, अंडर रूट 18 तैयार बैठा है कंपेयर होने के लिए. इसको 81 upon 5 को हम क्या कर सकते हैं? 5 1 5, 3 5 6 30, 30 बट 31 में पॉइंट 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 2 अंडर रूट 16.2. देन ये बात समझ में आई कैसे 16.2 आ गया सब बच्चों को? देन इट इज माइनस रूट 16. फिर अब देखो 16 5 80 upon 3, 80 upon 3 को हम क्या कर सकते हैं? 3 2 6, 3 2 6 20, 3 6 18 20. देन अगेन 6 पॉइंट लगाया. देखो ना क्या करा मैंने, क्या कर रहे हो यार तुम? फिर से आओ. देखो 3 2 6 20, 3 6 18 2. अब देखो पॉइंट लगाया तो 20 हुआ. 3 6 18 फिर 2 26. तो इट बिकम्स एक्चुअली 26.6 रिपीटिंग. तो आई राइट इट लाइक दिस 26.66. 2 बार 6 लिखा, फिर ये डॉट डॉट डॉट. ठीक है. लाइकवाइज ये हो गया अंडर रूट ऑफ 27 upon 4, 27 डिवाइडेड बाय 4. तो 4 6 24, 30 और 3 तो पॉइंट लगाया 30, 7 28, 2 20, 4 5 यानी कि 6.75. तो ये जो नंबर है जो फ्रैक्शन में थे, हमने अंडर रूट के अंदर इसको पॉइंट्स में लिख लिया. और जैसे ही मैंने इसको पॉइंट में लिखा, आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि भैया सबसे बड़ा कौन. हमें क्या लिखना है इसमें? ग्रेटेस्ट लिखना है खाली, और स्मॉलेस्ट लिखना है खाली. अगर मान लो वो कहता है अरेंज कर दो, तो हम अरेंज भी कर देते. तो लेकिन हमें इसमें खाली क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट. तो ग्रेटेस्ट 26.6. यही ग्रेटेस्ट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एज 26.66 रिपीटिंग इज ग्रेटेस्ट. देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 26.66
will dot 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 will also be greatest, और वी कैन से, पर ये किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो ये सबसे पहला वाला कौन था, 4/3√5 इज ग्रेटेस्ट। ये करना जरूरी होता है, इसको ओरिजिनल नाम बताना, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे या यहाँ लिख देंगे, पर अगर ये नहीं करेंगे तो चांसेस है आपके कि टीचर एक नंबर उड़ा दे, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो ये थे ना, उसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है ये बताना है। आई होप यू फॉलो दिस जी, आई होप यू फॉलो दिस। Yes, sir, follow. But sir, in the answer it is given 9/√5. 9 आंसर में गिवन है 9/√5 इज द ग्रेटेस्ट, तो 9/√5 क्या था, 16.2, और यहाँ क्या आ रहा है, हमने कुछ मल्टीप्लाई गलत किया होगा या तो फिर 16 हाँ देखो हम लोगों ने क्या गलती करी है, 3 को हमने √3 लिख लिया है, यहाँ √3 को हमने लिखना चाहिए √9, तो यहाँ होना चाहिए 9, तो देखो यहाँ 9, तो फिर ये बहुत छोटा हो जाएगा, isn't it? देखो 16 5 80/9, 80/9, तो 9 8 72, फिर आया 8.89, 8 72, यानी कि ये 8.88 रिपीटिंग है, ना कि 26। तो ग्रेटेस्ट देखो ये नहीं रह गया ना, इसलिए ग्रेटेस्ट क्या हो गया, 16.2 रिपीटिंग ग्रेटेस्ट हो गया। तो यानी कि देखो ये 16.2 विल बी द ग्रेटेस्ट। तो देखो ये नंबर हो गया क्या, 9/√5। सो सी, जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपनी गलती को पकड़ा और हमने उसको 9/√5 ग्रेटेस्ट लिख दिया। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट लिखना है, स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, कोई बता सकता है? यू कैन सी इस सब में सबसे छोटा नंबर यही 6.75 दिख रहा है, isn't it? तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट इज स्मॉलेस्ट इज 6.75 और √6.75, या इसमें ऐसे, इसमें ये ना लिखो, इसमें क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो आप लिख दो डायरेक्टली स्मॉलेस्ट इज √6.75, और अब ये है, लेकिन ये है और ये है, तो और 3/2√3। But in the answer it is given -3√2. -3√2, so -3√2 is -18 स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 3 √9 और √4, तो 9 9 3 27/4, 27/4 तो 6.75 होता, नहीं स्मॉलेस्ट तो यही आ रहा है। होपफुली आप कॉपीड इट करेक्टली और नॉट, कॉपीड इट करेक्टली, हाँ कॉपीड इट करेक्टली 3/2, और पहला वाला क्या था -3, हाँ अरे ये देखो ना माइनस साइन, स्वीट हार्ट, यू नॉट सीइंग द माइनस साइन। माइनस में कोई भी नंबर अगर होता है तो ये सबसे छोटा होगा ना, देखो -√18 और -16, माइनस में जो ज़्यादा बड़ा नंबर होता है माइनस में, देखो अगर हम बात कंपेयर करें -3 को 4 से, तो कौन सा छोटा होगा, अगर हम अगर -3 और 2 को कंपेयर करें, -3 और 2 को कंपेयर करें तो कौन सा छोटा होगा, -3 छोटा होगा ना, और अगर हम -3 और -4 को कंपेयर करें तो कौन छोटा होगा, -4, मतलब नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा माना जाता है। तो ये हमने माइनस साइन तो इंडिकेट ही नहीं किया था, स्मॉलेस्ट ये कैसे हो गया, ये तो प्लस साइन के साथ है, स्मॉलेस्ट तो माइनस साइन वाला होना चाहिए ना, तो वी शुड नॉट कंसिडर दिस क्योंकि प्लस है, शुड नॉट कंसिडर दिस एंड शुड नॉट कंसिडर दिस। तो बचे हमारे पास 2 छोटा पाने के लिए, ये दोनों बचे। अब ये भी छोटा हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है, पर इनमें सब वैल्यू वाइज बड़ा कौन है, वैल्यू वाइज बड़ा 18 है, क्योंकि ये तो 16 और ये 18 है, वैल्यू वाइज ये बड़ा है, तो इसलिए यही सबसे छोटा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट विल बी -√18, दैट इज, और यू कैन से -3, दिस इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 11th का सेकेंड पार्ट, सो आई एम रबिंग दिस and copying down 11th का second part for you. That is, we need to write them in the descending order. 11th का second part, we need to write them in the descending. What is descending order? Descend का मतलब bigger to smaller. Bigger to smaller.
असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा smaller to bigger. और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। तो वी हैव टू राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, 5/√3, 7/3√2 -√3, 3√5 एंड 2√7। तो बहुत हद तक तुम्हें इसकी वर्किंग सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चंस लगेगी, क्योंकि हम वही सब इसमें भी करने वाले हैं जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। क्या कि सब ये मिक्स्ड बैग है, तो इसको सिंगल बैग ऑफ इरेशनल मतलब सिंगल बैग ऑफ सर्ड बना लो, अंडर रूट के अंदर ले जाओ, सिंगल बैग ऑफ रूट्स बना लो, एक अम्ब्रेला के अंदर ले जाओ। दैट इज यू कैन राइट दिस एज, एंड प्लीज चेक मी देयर एंड देन। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने 5 को √5 लिख दिया था, तो 5 को √5 नहीं लिख सकते, 5 को √25 लिखेंगे, है ना। तो √25/√3 एंड √49 √2/√9। पिछली बार हमने यही करा था, 3 को √9 नहीं लिख रहे थे, तो गलती हुई थी, कॉमा -√9 नहीं, ये तो √3 है ही है। -√9 क्यों भैया, ये तो है ही है √3, इसको कहे छेड़ेंगे? यस सर, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको तो √3 रहने देंगे। यार देखो, ये बड़ा टेढ़ा काम है, देखने में आसान लगता है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, √9 √5, और देखो सर √25 √5 ओनली, वो तो √5 है ही है ना। अब बुरी तरह कंफ्यूज हो रहे हो तुम। तो अब देखो, ये 2 को क्या लिख सकते हैं, √4 और √7। जो रूट के अंदर ऑलरेडी है उसको स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि हम बाहर से रूट के अंदर ले जा रहे हैं, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि हम अगर √b है तो वो तो √b ही रहेगा, लेकिन अगर वो a है तब हम उसको √a² लिख सकते हैं, क्योंकि √a² वापस से a आ जाएगा। ओके, सो अब ये क्या हो गया भैया, ये हो गया √25/3। ये क्या हो गया, √49 × 2 यानी कि 98/9। ये क्या हो गया, विद माइनस साइन से सावधान रहना, पिछली बार माइनस साइन ने हम लोग को झटका दिया था। √3, फिर √45, दैट इज 9 × 5, और √28, और फिर ये क्या हो गया, √4 × 7, 4 × 7। तो एक स्टेप हम और वेस्ट कर ले रहे हैं। देखो अब ये क्या हो गया, √25/3 इज व्हाट, 8.33 रिपीटिंग। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। देन दिस बिकम्स √98/9 यानी कि 9 1 9, 0 80 का मतलब 7, मतलब 80 का मतलब 9 9 81 होता है, तो 9 8 72 8 यानी कि 10.88 रिपीटिंग अंडर रूट के अंदर। फिर ये हो गया -√3, ये हो गया √45 और ये हो गया √28। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। हम इसको ऐसे निशान लगा लेते हैं, तो मेरे से गलती नहीं होती कभी भी चूज करने में। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 10.88, ओ ये देखो अभी गलती करने जा रहे थे हम, ये आ गया तीसरे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे कौन आएगा, 8.33। और पांचवें नंबर पे मरता क्या ना करता बेचारा फिसड्डी लाल आ जाएगा, माइनस में भी है वो, क्योंकि तो क्या हुआ, √45 इज बिगर देन √28। ये साइन लगाना ग्रेटर देन का ही ऑर्डर में लगाना कहलाता है। क्या बोला मैंने, ये साइन लगाना ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का ही ऑर्डर में लिखना कहलाता है। √8.33 रिपीटिंग इज मोर देन -√3। तो देखो, यू हैव अरेंज देम, 10 अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, 10 अरेंज्ड इन डिसेंडिंग। now we are going to write it in the real number. हाँ, अरे यस, वो तो लिखा ही नहीं, देखो तुमने अच्छा वो मुझे चेक करा। तो अब वी आर गोइंग टू राइट इट इन द ओरिजिनल फॉर्म, यानी ये जो नंबर है, 3√5 is greater than, हाँ, जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक ये फाइनल आंसर हो ही नहीं सकता। फिर √28 इज 2√7, 2√7। फिर दिस इज व्हाट, greater than
ये है 7/3√2 7/3√2 greater than 5/, इज ग्रेटर देन, ये है 5/√3, फिर ये है माइनस। greater than minus. सो दिस इज द डिजायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर हो गया सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 12 दिखाते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4 ऑफ एम एल अग्रवाल। दिस इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या? Smaller to bigger. बड़े से छोटे से बड़ा, असेंड, नीचे से ऊपर जाते हैं तो असेंडिंग कहलाते हैं। यू असेंड द माउंटेन, तो माउंटेन चढ़ते हो जब, तो हमें छोटे से बड़ा लगाना है। क्या? किसको? क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 6th रूट ऑफ 5। तो जब भी इस तरह का सवाल तुम्हारे पास आए कि गेट LCM. सेम ना हो, गेट मतलब ऑर्डर ऑफ द रेडिकल सेम ना हो, मैं उसको गेट बोलता हूँ, लेकिन आपका एक्चुअल वर्ड है ऑर्डर ऑफ द रेडिकल सेम ना हो, तो मेरा ये सजेशन है कि इनके गेट्स, यानी देखो इसका 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, और यहाँ 3 है, तो यू टेक द एलसीएम ऑफ 3, 2 and 6। दैट इज यू टेक द एलसीएम ऑफ 3, 2 and 6। व्हाट कैन यू थिंक ऑफ द एलसीएम ऑफ 3 into 6? क्या होगा? 6 होगा, isn't it? 3, 2 और 6 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, 2 लिखा 3, 1, 3 आ गया, फिर 3 लिखा 1, 1, 1 आ गया, तो इसका तो ये एलसीएम हो गया क्या? एलसीएम 2 into 3 दैट इज 6। ऐसे निकालते थे ना लोअर क्लास में एलसीएम, तो इसका 2, 3, 2 और 6 का एलसीएम आ गया 6। सो ट्राई टू मेक दिस गेट सेम, मीनिंग ट्राई टू मेक द ऑर्डर सेम। कैसे भैया? बाय लाइक दिस, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर। अगर देखो हम यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी पावर 2 लग जाएगी, या नहीं समझे तो ऐसे समझ लो। देखो ये चीज़ जो है 2 की पावर 1/3 है ना, ये जो चीज़ है वो 3 की पावर 1/2 है ना, और ये जो चीज़ 5 की पावर 1/6 है ना। तो अब अगर मुझे इसको पावर 1/6 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2, और ऊपर नीचे 2 से 1/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इजंट इट? तभी तो डिनोमिनेटर में 6 बनेगा। लाइकवाइज यहाँ पर भी मुझे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये देखो, और यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ बैठेंगे हम लोग आराम से। तो देखो एक तरीके से ये क्या हो गया? 2 की पावर 2/6, ये क्या हो गया? देखो 3 की पावर 3/6, देखो ये क्या हो गया? 5 की पावर 1/6। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6th रूट ऑफ 2 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6th रूट ऑफ 3 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6th रूट ऑफ 5। तो मैं क्या बता रहा था? मैं कह रहा था डायरेक्टली अगर आपको इसे 6 बनाना है तो यहाँ 3 into 2 कर रहे हो तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी। यानी यही चीज़ डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्टली लिखने में दिक्कत हो रही तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर देखो 6 बनाने के लिए into 3 कर रहे थे, तो 3 की पावर 3, देखो 3 की पावर 3 वही चीज़ आ गई ना। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, या इस स्टेप से भी आप कर सकते हो। क्या ये समझ में आई बात? इसके बाद अब क्या करना है? ये हो गया 6th रूट ऑफ 2 की पावर 2 यानी 4। ये क्या हो गया? 6th रूट ऑफ 3, 3 9 27। ये क्या हो गया? 6th रूट ऑफ 5। क्योंकि गेट सेम है, सो वी कैन कंपेयर द नंबर्स इनसाइड। वी कैन सी दैट 4 सबसे छोटा है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 27 आता है। तो ऐसा है क्योंकि इसलिए इसके गेट अगर हम लगा दें, और गेट कोई भी हो सकते हैं, कोई भी पावर के, चाहे स्क्वायर रूट लगा दे, चाहे क्यूब रूट लगा दे, चाहे 4th रूट लगा दे, पर जो इसमें लगाएंगे वो इसमें लगेगा, वो इसमें लगेगा। तो हम चाहे तो स्क्वायर रूट लगा दे, पर हमें तो 6th रूट लगाने की आदेश मिली हुई है, तो 6th रूट लगा दिया। देखो तो देखो अरेंज्ड, दैट इज हेंस अरेंज्ड। Sir, √3. Sir, you haven't written it in the. हाँ ये 3 है, आई एम सो सॉरी। ये तो नहीं, क्या √3 सही तो है। अच्छा यू, हाँ हाँ, यस यस यस,
हमें अब क्या करना चाहिए, इसके ओरिजिनल फॉर्म में इसको लिखना बाकी रह गया है, इसके ओरिजिनल फॉर्म। यानी कि ये जो नंबर है 6√4 वो एक्चुअली में ये है, और वो देखो ये है, यानी कि 3√2 है। इसी तरीके से 6√5 ये इसकी रेलगाड़ी आ रही है 6√5, और ये √27 देखो यहाँ से √3 तो हाँ √3 है। सो हेंस अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सब बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया।